Hello students, welcome to our channel. So before I start with today's lecture, I'll just give you a brief. Here we are starting with NCERT class 9 mathematics. This is particularly chapter 10, area of a triangle with Heron's formula. So this is a part of mensuration where we are dealing with area of triangles. अगर आप सिलेबस क्लास 9 का देखोगे पर्टिकुलरली तो मेंसुरेशन टोटल 13 मार्क्स का आएगा, जिसमें वन पार्ट इज दिस area of triangle using Heron's formula and the other part is surface area and volumes. But for this lecture we are just concentrating on the Heron's formula part because it's a very small concept. एक lecture में आपका complete हो जाएगा. मैं पूरा ट्राई करूँगी आपको समझा देने का, एक दो सॉल्व करवा दूँगी एग्जाम्पल, और आई होप इट विल हेल्प यू टू गेट दिस कॉन्सेप्ट. नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल और जो फॉर्मूला हेरॉन ने दिया है, उससे पहले हम लोग को समझना है कि हम लोग ट्राइंगल्स कैसे डिफरेंट टाइप्स का होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल्स को हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं. एक इज़ बाई साइड, द अदर इज़ बाई एंगल. साइड में क्या होता है, वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द साइड्स. तो इसमें जैसे मान लो ये ए है, ये ए है एंड ये भी ए है. ऑल द साइड्स आर equal, so we call it an equilateral triangle. The second is isosceles triangle, means only two sides will be equal. Suppose this is A and the other will be B, C, whatever, but only two sides will be similar. Not mandatory that only these two can be similar. ये भी similar हो सकता है, ये कुछ अलग हो सकता है, but only two sides will be similar. And scalene में no similarity, everything is different. So these are the categorizations of triangle by side. जब हम लोग by angle बात करते हैं, so the first comes is acute angle triangle. Acute angle में क्या होता है, all the three angles are less than 90 degree. So a triangle, you know, it has three angles, so all of them here will be less than 90 degree. Right angle में क्या होता है, one angle is equal to 90 degree. So if this is 90 degree, the others are not. So when one angle is 90 degree, we call it a right angle triangle, and for obtuse angle triangle, one angle is greater than 90 degree. For example, given in this figure, this is greater than 90 degree and the rest can be different angles. So these are the categorizations of triangle by sides and by angles. Now you have read in your previous classes that area of a triangle का एक formula है. क्या होता है generally area में, हम लोग को मान लो ये base side इसका दिया हुआ रहता है, base of a triangle, and this is the height of a triangle. तो very similarly you can find the area is equal to half into base into height. So this is a common formula that you generally use to calculate the area of triangles, but a lot of times you will see that the height is not given. मान लो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में तो ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, चलो कोई भी एक को बेस, ये इसको अगर हाइट मान लिया, h हो गया, ये बेस हो गया, दो साइड्स आपको दे दिया तो आप कर लिए हाफ b इंटू एच. बट अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, मान लो अक्यूट एंगल दे दिया या ऑब्ट्यूज एंगल या फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसमें साइड्स दिया हुआ है, फॉर दैट यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया, राइट. सो फॉर दैट कम्स इन हेरॉन्स फॉर्मूला. तो उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है पेरीमीटर. सो हेरॉन्स फॉर्मूला जानने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा पेरीमीटर क्या होता है. पेरीमीटर बेसिकली मीन्स द टोटल ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. सो पेरीमीटर ऑफ अ स्केलिन ट्राइंगल यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं. स्केलिन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ए बी एंड सी हम लोग यहाँ पे अलग अलग पकड़ रहे हैं. वी आर थिंकिंग दैट ऑल द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल इज डिफरेंट. सो पेरीमीटर इज नथिंग बट द total of the sides. Okay, so how do you calculate this? Perimeter is a plus b plus c. Very easy. अब पेरीमीटर निकालने के लिए a plus b plus c, जैसे आपको पता होगा, आप पहले भी पढ़े हो ना, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है,
ये ए स्क्वायर अगर सारा साइड सेम होता है तो 4a, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। सिमिलरली रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। So similarly, perimeter of a scalene triangle is total of the sides a plus b plus c. Simple है। अब next आता है हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, पेरीमीटर जैसे देखो a प्लस बी प्लस सी, दिस इज नथिंग बट पेरीमीटर। इसके लिए हम लोग का एक कॉन्सेप्ट लगेगा एस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। Semi perimeter is equal to the total of the sides by 2. Basically it is perimeter by 2. And the area of the triangle that you need to calculate when 3 sides are given is this formula. You need to use this formula. ये क्या है, root over of s मतलब semi perimeter into s minus a, s minus one of the sides, s minus b the other and s minus c. Very simple. आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है। द क्रक्स ऑफ दिस लेक्चर और द क्रक्स ऑफ हेरॉन्स फार्मूला इसी में रहता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना हो और किसी भी तरीके से आपको साइड्स दिया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि आपको हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करना है एंड दिस इज़ योर फार्मूला, दिस इज़ योर गो टू फार्मूला टू यूज़। सो ये आपका एक क्वेश्चन मैंने डाला है यहाँ पे, ये एनसीईआरटी बुक का ही है, एग्जाम्पल है। मैं ट्राई करती हूँ ये इसको सॉल्व कराने का, आपको एक हैंड्स ऑन थोड़ा मिल जाएगा कि कैसे करना होता है। सो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter and perimeter is 32 centimeter। अब क्वेश्चन में देख लो सारा कुछ साइड्स को लेके है, पेरीमीटर को लेके है, तो आपको माइंड में फर्स्ट थिंग, जब आपके एग्जाम में भी आएगा, फर्स्ट थिंग इट शुड क्लिक ऑन योर माइंड इज sides are given, perimeter is given, I should go to Heron's formula। But even before you start writing the formula, आप पहले ट्राइंगल को ड्रॉ कर लो। ट्राइंगल को अगर आप ड्रॉ कर लोगे तो आपको ईजी हो जाएगा व्हेन यू कैन विजुअलाइज। सो आपका क्या है, सी वन साइड इज ए 8 सेंटीमीटर गिवन, द सेकेंड बी इज 11 सेंटीमीटर गिवन। आपको थर्ड साइड निकालना है, उसके लिए आपको सी चाहिए, तो वो भी ईजी है। आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको अगर आपको सी निकालना हो, क्योंकि सी आपका यू डोंट नो सी, तो उसके लिए यू नीड टू डू सी इज इक्वल टू पी माइनस ए प्लस बी। ये तो आपका ईजी है, आप कर लोगे। तो पेरीमीटर आप जस्ट वैल्यू पुट कर दो, पी माइनस 8 प्लस 11 विच इज़ इक्वल टू 13, राइट। आप भी कर लो, आपको पता चल जाएगा। सो द साइड ऑफ सी, वैल्यू ऑफ साइड सी इज़ 13 सेंटीमीटर। नाउ बस आपको मिल गया है सारा, आपको वैल्यूज़ ए बी सी मिल गया है, आपके पास पेरीमीटर भी है। पेरीमीटर है तो आप सेमी पेरीमीटर निकाल लो। सेमी पेरीमीटर इज़ क्या, पेरीमीटर बाई 2 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 32 बाई 2 which is equal to 16 centimeter. Now you have all the values, you have A, B, C and S। अब आप बस हेरॉन्स फार्मूला में पुट करो इसको, A, B, C you know and then let's put area of the triangle। फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ S into S minus A, S minus B, S minus C विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस। हम लोग का कितना था, एस इज़ इक्वल टू, हम लोग कैलकुलेट किए थे 16 सेंटीमीटर, राइट। और बाकी ए बी सी का तो वैल्यू आपके पास है ही। ए इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, तो 16 इंटू 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 8 into 5 into 3।
नाउ सी, आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब आपके पास इतना बड़ा नंबर होगा, आप ना इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मत जाओ, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे फिर रूट के लिए आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, सबसे जो छोटा पॉसिबल डिवाइज़र है उसमें आप ब्रेक कर लो। जैसे 16 क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2। सिमिलरली 8 क्या होता है, 2 × 2 × 2, राइट। और 5 और 3 जैसा है आप पुट कर लो। अब जब स्क्वायर रूट करते हो तो क्या करते हो, जब जब आपको मिल जाएगा कि बंच ऑफ 2 आप कर सकते हो, तो उस 2 बंच से एक को निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो 2 2 2 ये एक बंच है, 2 2 2 ये भी एक बंच है, मीन्स दिस इज 8 × 8। सो आप इसमें से एक 8 को बाहर निकाल लो, और बाकी जो है 2 5 एंड 3 ये सिंगल वैल्यूज़ है, तो इसको आप स्क्वायर रूट में नहीं डाल सकते। यू कांट टेक देम आउट एज सिंगल नंबर्स, राइट। सो व्हाट यू डू इज जस्ट कीप इट एज इट इज़। 5 × 2 × 3 इज 30। सो योर आंसर इज 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट नहीं भूलना है। वेन एवर यू आर राइटिंग एरिया और पेरीमीटर, यू कांट फॉरगेट द यूनिट। एनी नंबर विदाउट द यूनिट मेक्स नो वैल्यू। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अगर आप एक लेवल और जाना चाहें तो आप 30 का स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट for class 9 syllabus for your exams that is not needed. If you want, you can definitely go to that extent. Fine. So this solves your first question. Now एक और एग्जाम्पल करते हैं, ये भी आपका NCERT बुक से ही है। The second question देखते हैं क्या बोलता है। It is telling a triangular park ABC has sides 120 meter, 80 meter and 50 meter. एक पार्क है, उसका sides it is given to us in the question. A gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. Question तो बहुत लंबा है, but see it has two parts. Whenever you get a question like this, try to divide it. So पहला part क्या बोल रहा है, how much area does she need टू प्लांट। ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग को एरिया के बारे में क्वेश्चन है, एंड द सेकेंड पार्ट इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ वायर। सो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग को क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालना है, ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, साइड्स आपको दिया हुआ है, आपको क्लिक करना चाहिए कि इसमें आपको हेरॉन्स फॉर्मूला ही यूज़ करना है। आप पहले देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, मान लो अगर आप दिया हुआ नहीं रहता तो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ABC आप 3 ट्राइंगल बनाएंगे, साइड्स लिखेंगे 50, 80, 120 जैसा दिया हुआ है। नाउ टू फाइंड द एरिया व्हेन द साइड्स आर गिवन, यू नीड टू गो फॉर हेरॉन्स फॉर्मूला, एंड फॉर दैट फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर। ओके, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A + B + C by 2। ठीक है, यहाँ पे A + B आई एम टेकिंग 50 एज A, 80 as B and this is B। अगर आप इसको ABC करके नहीं भी लिखते, you can write it as AB, means length of side AB। Okay, from point A to point B, this can be called as AB, which is equal to AB plus AC plus BC by 2, which is equal to so the perimeter is coming to 125, right? Sorry, semi perimeter 125 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको ये तो सिंपल हो गया, फिर आपको एरिया निकालना है, एरिया उसके अंदर ही उसको प्लांट करना है ग्रास। आप एरिया निकालने के लिए सेम वही डाल दो, एस एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, which is equal to root over of 125 into S minus A, मतलब 125 minus 50, 125 minus 50 75 into 125 minus 80 which is 45
और 125 माइनस 125, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लो, पूरा ब्रेक डाउन कर लेते हैं हम लोग। 25 इज़ 5 इंटू 5 इंटू 5, 75 इज़ 5 इंटू 5 इंटू 3, 45 इज़ 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड लास्ट में 5। अब आप इसको पेयर्स में ब्रेक डाउन कर लो। ये 5 इंटू 5 इज़ 1 पेयर, दिस 5 into 5 is another pair, this 3 into 3 is 1 pair, and this 5 into 5 is 1 pair. Now from all the pairs you bring out 1. 5 into 5 into 3 into 5 और बाकी का रूट ओवर ऑफ 15 रख देते, which is equal to 375 root over of 15 meter square. So this is your area. So the first part of the question, area is equal to 375 root over of 15 meter square. First part of your question is done. The second part is telling find the cost of fencing it. देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि फेंसिंग करने का कॉस्ट कितना पड़ेगा। फेंसिंग तो आप अंदर करोगे नहीं, एरिया तो हमें चाहिए नहीं। फेंसिंग मीन्स यू डू इट ऑन द साइड्स, राइट, इट्स ऑन द बॉर्डर, सो दैट मीन्स यू नीड द पेरीमीटर. So cost of fencing with barbed wire at rate 20 rupees per meter, leaving a space of 3 meter. तो बीच में आपको ये 3 मीटर यहाँ पे छोड़ना है, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हेन यू आर टेकिंग आउट द पेरीमीटर, तो इसको हम ये ऐसे समझते हैं, देखो डायग्राम है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 120 प्लस 50 प्लस 80 विच इज इक्वल टू 250 मीटर. Now to find out the length of the wire for the fence, you need to calculate the length which is equal to 250 minus 3 जो आपको गेट के लिए छोड़ना है, ठीक है, which is equal to 247 मीटर. जब भी आपको क्वेश्चन में फेंसिंग या बॉर्डर या पेवमेंट ऐसा कुछ देंगे तो यू नीड टू रिमेंबर दैट यू नीड टू गो फॉर द पेरीमीटर, क्योंकि वो हमेशा बॉर्डर्स में होता है, इट्स नॉट ऑन द इनसाइड. एरिया हम लोग को उस टाइम में नहीं चाहिए. So therefore the length of the wire that we need is 247 meter and the rate is rupees 20 per meter. So cost of fencing is nothing but the multiplication of both rupees 20 into 247 which is equal to rupees 4940. So ये आपका दोनों पार्ट का आंसर आपको मिल गया है. फर्स्ट द क्वेश्चन वॉज how much area is there जिसमें grass plant करना है, so that also you know it's 375 root 15. And the second part is the cost of fencing given the rate of the wire. So this is also you found out the perimeter and you've left the length कि कितना छोड़ना है गेट के लिए, बाकी पे हम लोग को चार्जेस लगेंगे 20 रुपीज़. and this is your answer for the second part. So ये दो एक्सरसाइज, दो क्वेश्चंस जो था बुक में मैंने ये सॉल्व करवाया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करना है, यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपका बुक में है, आप ट्राई करो खुद से इसको सॉल्व करने का, ये आपका होमवर्क रहेगा. You try to do it yourself and put your answers on the comments, and if you need any help please do reach out. We are always there to help you. We want to make sure that you do well in your exams. So that's it for today. More when we meet next. Thank you.